आप सबका मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। मेरा नाम है चांदनी और इस वीडियो में हमारे साथ मिस्टर कुमार ज्ञानी हैं जो कि एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं जो कि 15 ईयर से प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे एंड तक देखिएगा। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, क्योंकि इस वीडियो में उन्होंने बहुत ही अच्छी चीज़ें बताई हैं। तो इस वीडियो में उन्होंने बताया है कि सेविंग कैसे करनी चाहिए, सेविंग कब से करनी चाहिए, एक सेविंग जब हम स्टार्ट करने की बात करते हैं उसकी राइट एज क्या है, उन्होंने इस पे भी फोकस किया है। प्लस उन्होंने बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल के साथ इम्पोर्टेंस बताया है सेविंग का, कि अगर कोई सेविंग करता है तो वो उसके रिजल्ट्स क्या होते हैं और अगर एक इंसान सेविंग नहीं करता है तो उसके रिजल्ट्स क्या होते हैं। बहुत ही अच्छे एनिमेटेड तरीके से उन्होंने एग्जाम्पल के थ्रू बताया है। प्लस द बेस्ट पार्ट, ये ऑनलाइन कंसल्टेशन भी देते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसके अंत में मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनका कॉन्टैक्ट ईमेल भी डालूंगी, आप उन्हें भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि उन्हें सेविंग्स के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में क्या कहना है। Thank you, Chandni. Thank you for introducing me to your viewers. Just a little bit more about me. I've been into financial and insurance sector for more than 15 years, and predominantly we are into giving financial advice and consultation to every individual who is keen to plan his financials well. And currently I am associated with Aditya Birla Capital in the capacity of managing partner. So that's about me. Over to you, and whatever your queries are, please carry on. Okay. Very welcome to my platform, and I hope this video is going to help everybody when it comes to savings. Yeah, I'll make best efforts of mine, and I'll try and give the best possible advice that I can give. Okay, thank you. And since we are talking about saving in this particular video, okay, so I often hear from everybody that we don't have enough money to start saving. So can you put some light on it? Okay, this query is a very general question that I come across in my working life, because saving by nature, it is something which people don't do it by willingness. It has to happen by compulsion only, because you never earn enough to meet your expenses, right? So whenever you earn more, your life standard of living goes up, and then you start spending more. Suppose when you are earning 20,000 bucks per month, you will go with a certain set of instruments, or you can say you will follow a certain standard of living. But when you earn more, you tend to spend more also, right? So your spending increases naturally, but savings is something which we do after spending, but it should not be actually like that. There is a very famous saying from one of the international financial gurus, so we call them Mr. Warren Buffett. He is known for his prudence in investing in equity. So he says that saving is not what you do after spending. It should be inverse. It should be expenses is what you should do after savings. So whatever you earn, and out of your earning, you have to set aside a amount which you will save regularly for your future requirements. And after setting this amount aside, whatever you are left out of, Yes, but you have yes, to you are spend. right that This is how the one things should should know be. why But it savings doesn't is happen in important. practical Even life. before People understanding why savings first is they important, one take should care of their understand what is spendings. savings. They Exactly. Right. upgrade their standard of People living, and whatever they are left carry out of, various they portion try and that save that amount. It should saving not is be the way something which they do actually. at a So particular saving time, by at a particular its interval. It is nature, not it like is that. compulsory. People Savings have and to understand investments that are two concept, different that
things, have two to different categories actually that we deal with our ensure that financials. whatever you are earning, you Savings have is to something set which aside you an do with a amount. It is a matter specific of having a objective in mind. self-discipline actually. I'll give you an So example it doesn't for matter that better how much. understanding. Suppose Actually, I it am doesn't saying matter that that I how much want you a big earn. house The quantum 15 of years earning from today, will vary from an which individual will to have individual, a but the which will have percentage a of tentative your earning monetary should be value fixed that equal to 1 CR. suppose you are So I earning have a 100 goal rupees, you defined, should fix that is I have that to you should accumulate 1 not CR spend more with a than 60 realistic value rupees that or point in 70 time, rupees, 15 or years rather from you now. should ensure that at And least I have 30% of your defined a income time period as should well that be I reserved have for 15 your years to accumulate future this amount. requirement, that is through So savings. I need to set aside I have a often particular come amount across this for thing a also certain that period of time we on regular means basis whatever I asked, okay, that for we this don't fixed have money. That interval is one thing. But then and I have with the often assumed come rate of across growth, so people that I saying am we don't able even to achieve earn this enough to monetary save. value of 1 CR So, to fulfill what my are your financial views on goals. that? Is there like any So this is what specific is saving. amount that Saving is mostly done in that the should most be our income? disciplined No, manner. right? I It mean, is done on a recurring with even little of in a income, we recurring can manner, save. so that you are able to accumulate that Absolutely. amount. Can I ask a counter question? So that is what is saving. And people do confuse it with investment. Investment is basically when you have a not to big reply corpus me with in yourself. figures. And when I say This big is a very corpus, it is a subjective very question. relative Are you term. earning For enough? somebody, 1 lakh rupees Yeah. can be a big, No, and no, for no, somebody, definitely not. I a mean, crore it's might not not enough, also but be a yeah, big. so That's basically right. people Right. don't. So it is a very That's relative right. term. Nobody But earns for an enough individual, ever. when you receive So some lump sum whatever you amount, earn, you always want to earn which you more. are not expecting So every it now doesn't and matter then, that how much so you are earning. your Even if your objective earning with might be investing a that small amount amount is to right now, primarily and I'm save sure the capital, everybody in the initial to grow part the of their capital, and professional to ensure career that or this their capital is business, available with they you earn a whenever you certain are in amount time of which need. tends to increase over a period of time. As you grow old, your financial worth increases, your earning capacity also increases. But that doesn't mean that when you are earning less, it should not refrain you, it should not stop you to save. There is a concept which is called start saving early. We can discuss that in length, that what that concept means. So it should not stop you to save small amount also, if you are able to save small amount, because that small amount over a period of time can lead to a big corpus which will help you in future. So that is a concept which we call that one should start saving early. We can discuss that if you want. Yeah, definitely. Before that, before we go further, I would like to, you to tell first importance of savings, or if you want to continue with that, Okay. along with that, that is also fine Okay. with me. So first, Yes, but yes, you are right that one should know why savings is important, and even before understanding why savings is important, one should understand what is savings. Right? People do carry various notions that saving is something which they do at a particular time, at a particular interval. It is not like that. Savings and investments are two different things, two different categories that we deal with our financials. Savings is something which you do with a specific objective in mind. I'll give you an example for better understanding. Suppose I am saying that I want a big house 15 years from today, which will have a tentative monetary value equal to 1 CR. So I have a goal defined, that is I have to accumulate 1 CR with a realistic value that point in time, 15 years from now, and I have defined a time period as well, that I have 15 years to accumulate this amount. So I need to set aside a particular amount for a certain period of time on regular basis for this fixed interval and with the assumed rate of growth, so that I am able to achieve this monetary value of 1 CR to fulfill my financial goal. So this is what is saving. Saving is mostly done in the most disciplined manner. It is done on a recurring manner. It's done in a recurring manner.
so that you are able to accumulate that amount in that specific period. So that is what is saving. And people do confuse it with investment. Investment is basically when you have a big corpus with yourself. And when I say big corpus, it is a very relative term. For somebody 1 lakh rupees can be a big, and for somebody a crore might not also be a big amount, right? So it is a very relative term. But for an individual, when you receive some lump sum amount which you are not expecting every now and then, so your objective with investing that amount is to primarily save the capital, to grow the capital, and to ensure that this capital is available with you whenever you are in time of needs. Definitely. So that is very informative. Yeah, definitely. I'm sure. I hope that after listening your this thing, people, they have an idea what exactly saving is. तो ये एक बहुत ही हमेशा ही एक क्वेश्चन हमेशा आता है हम सबके सामने कि हमको सेविंग कब से स्टार्ट करनी चाहिए. इसका क्या एक पर्टिकुलर टाइम या एज होता है? आप इस पे कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, ये सवाल भी मेरे से अक्सर लोग पूछते हैं, या कई बार हम लोग को ये लोगों को समझाने में थोड़ी सी परेशानी ज़रूर जाती है. क्योंकि क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सेविंग जो है वो चॉइस से नहीं लोग करते हैं. जब तक कोई एक प्रेशर ना हो या एक दबाव ना हो, तब तक लोग सेविंग करना नहीं प्रेफर करते हैं. जब उनको रियलाइज़ होता है कि नहीं, सेविंग के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है, तभी लोग सेविंग के रास्ते में जाना पसंद करते हैं. या कुछ लोग होते हैं जो खुद से ही अवेयर होते हैं और समझदारी से अपने फाइनेंशियल्स को प्लान करके चलते हैं, तो वैसे लोग सेविंग्स को करना चाहते हैं. बट फिर भी लोगों को ये क्लैरिटी नहीं है कि सेविंग स्टार्ट कब से करें. तो इसका जवाब तो ये है कि जिस दिन आपकी पहली अर्निंग हो रही है, उस दिन से आपको सेविंग स्टार्ट कर देनी चाहिए. अब इस सेंटेंस को जो ये मैंने कहा अभी आपको, इसको मैं आपको एग्जाम्पल के ज़रिए मैं आपको समझाऊंगा अभी कि क्यों इंसान को जब उसकी पहली अर्निंग हो रही है उसी समय सेविंग स्टार्ट कर देनी चाहिए. उसके लिए मैं आप लोगों के साथ एक प्रेजेंटेशन शेयर करूंगा. उस प्रेजेंटेशन में आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि मैं ऐसा क्यों बोला मैंने. ओके, तो आप वो प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं? बिल्कुल, मैं प्रेजेंटेशन करने की कोशिश करता हूँ. हाँ, ओके. तो हम यहाँ पे एग्जांपल से समझेंगे. अब हम एक काल्पनिक सिचुएशन लेते हैं, हाइपोथेटिकल एग्जांपल. दो इंडिविजुअल हैं, अशोक, किशोर. ये आज दोनों की एज है 25 साल. अब हम इन दोनों की एक रिटायरमेंट प्लानिंग की स्टोरी डिस्कस करेंगे. इसमें किशोर जो है वो ये कह रहा है कि मैं 15,000 रुपया भी बचा सकता हूँ महीने का. 10 साल तक मैं बचा सकता हूँ आराम से, तो मैं अभी से बचाना शुरू करूंगा. तो वो 15,000 रुपया महीने का बचाना शुरू करता है. 10 साल तक वो बचाना चाहता है और वो ऐसा करता है. बट उसी समय जब दोनों की एज 25 साल थी, तो अशोक का ये कहना है कि अशोक थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाना चाह रहा है. उसको ऐसा लग रहा है कि मैं इतना भी फिलहाल नहीं कर रहा हूँ, कमा रहा हूँ, या जो भी कारण है, वो ये कहना चाह रहा है कि वो मैं अभी नहीं करके, क्योंकि रिटायरमेंट में बहुत समय पड़ा है, 60 साल तक तो काम ही करना है, तो अभी इतनी जल्दी क्या है इस बात की कि मैं अभी से रिटायरमेंट के लिए प्लान करूं. तो उसका ये कहना है कि मैं जब 35 इयर्स का होऊंगा तब मैं सोचूंगा रिटायरमेंट के बारे में, अभी इतना जल्दी से रिटायरमेंट के बारे में मैं नहीं सोचना चाह रहा. अब सिचुएशन ये है कि अब 10 साल बीत चुके हैं. अब ये दोनों इंडिविजुअल जो 25 साल के थे, अब वो 35 साल के हो चुके हैं. अब परिस्थिति ये है कि किशोर ने 18 लाख रुपए जमा कर लिए. 15,000 रुपया महीने का यानी साल का उसने 1,80,000, और 10 साल में 18 लाख रुपए इकट्ठे कर लिए. इस 18 लाख रुपए पे अगर हम मान लेते हैं कि इस पे 12% की सालाना ग्रोथ आ रही है,
कंपाउंडिंग बेसिस पे, यानी चक्रवृद्धि ग्रोथ आ रही है, ग्रोथ पे ग्रोथ आ रही है। तो ये 18 लाख रुपए 34,85,000 आज की डेट में किशोर के पास इकट्ठा हो चुका है। और इस समय तक अशोक ने शुरुआत भी नहीं करी है, बट अब अशोक की आंखें खुली थोड़ा, और अशोक को भी लगा कि नहीं, मुझे भी अब सोचना चाहिए अपने रिटायरमेंट के बारे में, और जो कि किशोर ने किया वही काम मैं करूंगा। अब मैं 15,000 रुपए महीने का बचाना शुरू करूंगा। तो अब अशोक ने भी बचाना शुरू किया। अब आ गया वो पल जिसके लिए इन लोगों ने इतना सब प्लान करके रखा था। अब ये दोनों 60 साल के हो चुके हैं। अब देखते हैं कि इन दोनों के पास कितना धन इकट्ठा हुआ है। किशोर की बात करें तो ये जो किशोर के पास 18 लाख इकट्ठा हुए थे, जो कि 38 लाख हो गए थे, आज उसके पास 6.9 करोड़ का कॉर्पस है। राइट? यानी एक छोटी सी सेविंग उसकी करोड़ों के कॉर्पस में बदल गई है। अब अशोक की कहानी देखते हैं। अशोक ने भी पैसा बचाया। उसने ये पैसा 10 साल की बजाय 25 साल बचाया, यानी उसने 15 साल और एक्स्ट्रा ये पैसा दिया बनिस्बत किशोर के। किशोर ने सिर्फ 10 साल ये पैसा इकट्ठा किया था अपने 25 साल से 35 साल की एज तक। अशोक ने ये पैसा अपने 35 से लेके 60 साल की एज तक, यानी 25 साल तक जमा किया। यानी टोटल अशोक ने 45 लाख रुपए जमा किए। और अशोक के पास क्या कॉर्पस इकट्ठा हुआ है, जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे 2.8 करोड़। यस, एब्सोल्युटली। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये कैसे हो गया, जबकि अशोक ने तो 45 लाख रुपए दिए हैं और किशोर ने 18 लाख रुपए दिए। तो ये कैसे हो गया? आप बताइए। बिल्कुल, मैं ही बताऊंगा। ये एक्चुअली ये सिनेरियो जो अपन ने डिस्कस किया, ये इसलिए है क्योंकि जो पैसा उसके पास था, आई विल गो बैक सर्टेन स्लाइड्स। ओके। यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे इस स्लाइड में आपको सारी स्टोरी समझ में आ जाएगी। इस स्लाइड में आप देख रहे हैं 35 की एज में किशोर ने कितना कॉर्पस इकट्ठा कर लिया था? 34.8 लाख। यस, कैसे? क्योंकि उसने 25 से 35 साल की एज में 18 लाख रुपए जो उसने इन्वेस्ट किए, वो 34.85 लाख बन गए। करेक्ट। अब अशोक इस समय क्या है, किस स्टेट में? जीरो में है। राइट? इसके 34.85 लाख अगले 25 साल में 12% से ग्रो हो गए और बन गए 6.9 करोड़। ओके। और क्योंकि ये उस अशोक जो था उस समय वो जीरो पे बैठा था जब ये 34.85 लाख पे थे, तो इसने 45 लाख जरूर इकट्ठे किए, बट उनको समय कितना मिला? सिर्फ 25 साल। और इसको समय कितना मिला? इसको समय मिला, इसको भी 25 साल मिला, लेकिन इसके पास 25 साल की शुरुआत में ही 35 लाख रुपए के आसपास अमाउंट क्रिएट हो गया। करेक्ट। जो कि मल्टीप्लाई होता चला गया 12% की रेट से। आई होप थोड़ा सा क्लियर हुआ है। काफी क्लियर हुआ है। और ये तो वैल्यू के साथ आप जो प्रेजेंट कर रहे हैं, आई होप कि ये देखकर जिन लोगों ने स्टार्ट नहीं किया होगा उन्हें भी कर देना चाहिए। Absolutely, which is when people ask me कि कौन से सबसे अच्छा समय होगा स्टार्ट करने का, तो मेरा जवाब यही रहता है कि अगर आप कमाते हैं तो आज से बेहतर दिन नहीं है। यू कैन स्टार्ट एज सून एज टुडे। आज ही आप स्टार्ट कीजिए। तो ये हमारी एडवाइस हमेशा रहती है। इसको हम, इस कॉन्सेप्ट को जो हमने आपको समझाया अशोक और किशोर वाले का, ये कॉन्सेप्ट है पावर ऑफ कंपाउंडिंग, यानी ब्याज पे ब्याज।
तो जब हम पावर ऑफ कंपाउंडिंग की बात करते हैं तो कंपाउंडिंग में सबसे बड़ा जो रोल प्ले करता है वो टाइम पीरियड है। तो किशोर के केस में उसको पैसा इकट्ठा करने के जो टाइम पीरियड में उसको कंपाउंडिंग का फायदा मिला, प्लस उसके जब पैसा इकट्ठे हो गए और उसका पैसा बढ़ता चला गया 12% से, तो जब उसका पावर ऑफ कंपाउंडिंग शुरू हुआ उसके पास एक बड़ा कॉर्पस था। यानी समय दोनों ने 25-25 साल दिए, बट किशोर के केस में 25 साल के शुरुआत में ही 35 लाख रुपए थे, जबकि इनके पास इन्होंने 0 से स्टार्ट किया। करेक्ट, राइट। तो इनका पावर ऑफ कंपाउंडिंग का फायदा सबसे ज्यादा किशोर को मिला। पावर ऑफ कंपाउंडिंग के साथ साथ टाइम पीरियड भी आपको देना पड़ता है। अगर आपको एक लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करनी है तो आपको एक जल्दी शुरू करना है, देर नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप देर से शुरू करेंगे तो आप उसको लंबे समय तक नहीं चला पाएंगे। तो जितना ज्यादा आप चलाएंगे उतना ज्यादा आपको उसको ग्रोथ का अपॉर्चुनिटी आपकी बढ़ेगी, आपका वेल्थ बढ़ेगी। राइट? जी बिल्कुल। मिस्टर कुमार, ये बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव था विद फिगर्स, तो एक्चुअली रिलेटेबल भी था कि कितने साल में हम कैसे अपने ही पैसों का इंटरेस्ट के साथ फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन हमने जहाँ पे ये जो आपने बात की थी, ये काफ़ी ही लॉन्ग टर्म की बात की। कई बार होता है कि एक इंसान जब सेविंग स्टार्ट करता है, सोचता है, तो आपके हिसाब से आप उसे मिनिमम कितने साल के लिए कहना चाहेंगे कि आप एटलीस्ट इतने साल रखिए, तब उसका एक अच्छा रिजल्ट आप आशा कर सकते हैं मिलने की? बिल्कुल अच्छा सवाल है आपका। एक्चुअली हमारे पास जो एडवाइस लेने के लिए आते हैं, हर किसी की रिक्वायरमेंट अपनी अलग रहती है और हर किसी का फाइनेंशियल स्टेटस अलग रहता है और हर किसी का ज़रूरतें अलग रहती हैं। किसी के पास समय की कोई सीमा नहीं होती। कहते हैं कि हमारे पास बहुत समय है क्योंकि अभी हमको मालूम ही नहीं है कि हमारे भविष्य में क्या खर्च होने वाले हैं। ये जनरली ये यूथ कैटेगरी के जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जिनकी अभी नई नई जॉब लगी है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है, दे आर नॉट इवन मैरिड एंड दे आर वर्किंग प्रोफेशनल्स और उनको अच्छी सैलरी भी मिलती है, तो उनके पास समय की कोई ऐसी क्राइटेरिया नहीं होती है। बट एट द सेम टाइम कुछ ऐसे लोग मिलते हैं जिनको ऐसा रहता है कि मेरे को अपने बच्चे की 3 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद शादी करनी है, उसके लिए मैं कुछ पैसा इकट्ठा करना चाहता हूँ। या कुछ कस्टमर ऐसे मिलते हैं या कुछ इन्वेस्टर्स ऐसे मिलते हैं जिनको 2 साल में या 3 साल में कुछ एक रियल एस्टेट परचेस करना है, जमीन परचेस करनी है, उसके लिए उनको पैसे इकट्ठे करने होते हैं। तो हर किसी की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट है और अपना अपना टाइम पीरियड है। तो जनरली लोग 1 साल के लिए भी इन्वेस्ट करते हैं, जिसको कि हम लोग रिकरिंग डिपॉजिट के फॉर्मेट में हम लोग उनको गाइड करते हैं कि आप आरडी के रूप में इसको कर सकते हैं। हर महीने आप एक अमाउंट, स्पेसिफिक अमाउंट कंट्रीब्यूट करिए, हर महीने एक राशि आप निर्धारित कर लीजिए और उस अमाउंट को आप हर महीने बैंक में डिपॉजिट कीजिए, रिकरिंग डिपॉजिट में, ताकि वो 1 साल के बाद वो मैच्योर होके आपके हाथ में एक लमसम अमाउंट मिल जाए। तो हर टाइम पीरियड के हिसाब से अलग अलग इंस्ट्रूमेंट है। अगर आपके पास लंबा समय है और आपको अभी फिलहाल कोई ज़रूरत नहीं लग रही है, तो हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में म्यूचुअल फंड्स में SIP सजेस्ट करते हैं। SIP के लिए मिनिमम 500 रुपए से भी इंसान स्टार्ट कर सकता है, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। अगर कोई करना चाहे तो इतने कम अमाउंट से भी वो स्टार्ट कर सकता है। और SIP में बहुत सुविधाजनक है क्योंकि उसमें आप चाहें तो बीच में अमाउंट बढ़ा भी सकते हैं। कभी आप ज़्यादा अमाउंट का कर रहे हैं और आपकी कुछ लाइबिलिटीज लोन के कारण आ गई हैं, तो उस अमाउंट को आप थोड़ा कम भी कर सकते हैं। तो काफ़ी सुविधाजनक रहते हैं SIP मोड में इन्वेस्ट करना। और लोग फिक्स डिपॉजिट भी करते हैं, लोग लाइफ इंश्योरेंस में भी इन्वेस्ट करते हैं।
तो आपकी जैसी जरूरत है, जैसा आपका समय सीमा है, उसके अनुसार हम एडवाइस करते हैं। 1 साल से लेके 30 साल 40 साल के लिए भी लोग सेव करते हैं। ठीक है, तो जैसा उनका टाइम पीरियड वैसा वैसा हमारा एडवाइस। ठीक है। हम एक बहुत मिथ चलता है सबकी, मतलब लोगों में एक आम जनता जो होती है, जब हम सेविंग्स की बात करते हैं तो सब प्रेफर करते हैं कि हम थोड़ा थोड़ा बचाकर या तो उन पैसों की एफडी बना लें सेविंग्स के नाम पर, या तो हम उन पैसों से गोल्ड खरीद के सेव कर लें। आपका इस बारे में क्या विचार है? ये कितना अप्रोप्रिएट है? और भले ही शायद इसमें रिस्क ज्यादा नहीं होता होगा, लेकिन क्या ये अप्रोप्रिएट है कि हम अपना जो हम बचा रहे हैं इतनी मेहनत से, हम उसे इस फॉर्म में सेव करें? तो इसका जवाब देने से पहले मैं आपको एक फ्रेज है इंग्लिश में, द बिगेस्ट रिस्क दैट वी टेक इज दैट वी डोंट टेक एनी रिस्क। Definitely, yeah, true. Right. So Yeah. if I were to categorize FD, I will say that it is a bigger risk that we invest in FD rather than investing in any other avenue. अगर हम FD में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हम सही कह रहे हैं आप, कैपिटल से रिस्क नहीं ले रहे हैं, बट जी। कैपिटल एप्रिसिएशन का बहुत बड़ा रिस्क हम लोग ले रहे हैं। क्योंकि हमारे भारतीय परिवेश में एक बहुत बड़ा दीमक है जो हमारे कैपिटल को हमेशा खाते रहता है, उसका नाम है महंगाई, इन्फ्लेशन। जी। राइट। या अगर मेरी एफडी 5% से ग्रो हो रही है और वर्तमान में जो महंगाई दर है वो 4.5% है या 4% है, तो मेरी एफडी मेरे को एक्चुअल में जो रिटर्न दे रही है वो दे रही है आधे से 1% का। राइट। और अगर मैं इसमें टैक्स के एंगल को जोड़ दूं कि ये पैसा जो मेरा एफडी में निवेशित है, ये मेरे को जो ग्रोथ इस एफडी के निवेश पे आ रही है, क्या उस पे मेरी टैक्स की कोई लायबिलिटी है? जी हाँ है। ये आपके इनकम में काउंट होती है। इसमें कुछ सीमा तक सीनियर सिटीजन्स के लिए छूट है, बट अगर नॉर्मल इन्वेस्टर्स की बात करें तो ये उनके सालाना आय में जुड़ती है, जो कि टैक्स को आकर्षित करती है। तो अगर मैं बोलूं कि मेरा 20% टैक्स स्लैब है, तो मैं उस पर 5% के ऊपर 20% देने के बाद मुझे कितना मिलेगा? 4%। और 4% अगर महंगाई दर है, 4.5% महंगाई दर है, तो मेरा पैसा ग्रो हुआ कि डीग्रो हुआ, ये आप स्वयं समझदार हैं। जी। तो FD इज अ बिगर रिस्क दैट आई टेक। हाँ, लेकिन FD ना करें ऐसी सलाह मैं नहीं देता। FD तभी करें जब आपको मूलधन की आवश्यकता बहुत ही निकट समय में पड़ने वाली है, या फिर आपके पास ये जो पैसा है ये आपका आखिरी पैसा है और इस पैसे पे आप बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहते। तो ऐसे इन्वेस्टमेंट के लिए जरूर मैं आपको FD सजेस्ट करूंगा जहां पे आप अपने कैपिटल के साथ बिल्कुल रिस्क लेना पसंद नहीं करेंगे। पर इसके कॉन्ट्रास्ट में मैं अगर बात करूं, ऐसे इन्वेस्टर्स जिनके पास धनराशि भी अधिक है और जिनके पास समय सीमा भी अधिक है और जिनके पास रिस्क लेने की क्षमता भी है, तो उनको मेरी सलाह ये रहती है कि वो अपना असेट जो है वो असेट अलोकेशन सही करें। यानी पूरा पैसा एक जगह कॉन्सेंट्रेट ना करके अलग अलग इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को अवेल करें। जैसा कि इक्विटी में वो जा सकते हैं, जैसा कि डायरेक्ट इक्विटी में न जाना चाहें तो वो म्यूचुअल फंड्स के जरिए इक्विटी में जा सकते हैं इनडायरेक्ट वे में। कुछ पैसा वो अपना इंश्योरेंस के स्कीम्स में सेव कर सकते हैं, कुछ पैसा वो अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, कुछ पैसा वो रियल एस्टेट में रख सकते हैं, कुछ पैसा गोल्ड के फॉर्मेट में भी रख सकते हैं, और कुछ पैसा अपना सेफ्टी इंस्ट्रूमेंट जिसमें अपने को गारंटीड रिटर्न हो, कैपिटल की सेफ्टी हो, ऐसे इंस्ट्रूमेंट में रख सकते हैं। और आजकल जीवन बीमा में हर कंपनी के पास ऐसी ऑप्शंस रहते हैं जिसमें आपकी कैपिटल की भी गारंटी रहती है और रिटर्न्स की भी गारंटी रहती है, और टैक्स फ्री भी ऑप्शंस रहते हैं। तो ऐसे ऑप्शंस भी आप अवेल कर सकते हैं। अच्छा,
हम जैसे अभी आपने कहा कि हम बहुत सारे ऑप्शंस में बहुत सारे ऐसे आपने डोमेन बताया जहां हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट, अगर हमारे पास उतना पैसा है तो। लेकिन फिर भी जैसे कि ये बहुत ही रिलेटिव है कि ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है। लेकिन आपके हिसाब से आप क्या कहना चाहेंगे कि कितने % एक इंसान को रिस्क लेना चाहिए मिनिमम? देखिए, ये बिल्कुल आपने सही कहा कि ये हर व्यक्ति का अलग अलग होगा, रिस्क लेने की क्षमता और रिक्वायरमेंट, और उसका जो वर्तमान में उसका पारिवारिक परिवेश है, उसके फैमिली की अभी क्या नीड्स हैं, उसकी क्या नीड्स हैं, ये हर इंडिविजुअल के हिसाब से वेरी करेंगी। तो हर किसी की प्लानिंग तो अलग अलग ही होगी, ये परसेंटेज कॉमन नहीं कर सकते, बट इन जनरल हम ये कह सकते हैं कि अगर एक यंग इंडिविजुअल है, अभी अपने 35-40 साल तक की एज में है, तो वो अपना 50% तक फंड्स जो हैं वो इक्विटी बेस्ड इन्वेस्टमेंट्स में रख सकते हैं, जिसमें कि वो थोड़ा समय देके उसको ज़्यादा रिटर्न्स कमाने की, क्योंकि इक्विटी में रिटर्न्स की देने की क्षमता ज़्यादा रहती है, बट उसमें एक टाइम पीरियड अपने को लंबा देना होता है। तो अगर आप 40-45 साल तक की भी एज के हैं, तो आप अपने जो 15 ईयर्स 20 ईयर्स के जो गोल्स हैं उसके लिए आप इक्विटी बेस्ड ऑप्शन चूज कर सकते हैं, और बचा हुआ 20 से 30% आप फिक्स्ड रिटर्न्स वाले में कर सकते हैं, चाहे वो इंश्योरेंस के जरिए हो या एफडी के जरिए हो। बट इंश्योरेंस प्लान्स में जो रिटर्न्स होते हैं वो लंबे समय के लिए गारंटीड होते हैं। एफडी के रिटर्न्स जो हैं डिक्लाइनिंग है, अभी ट्रेंड आप जैसे देख रहे हैं 12% से पिछले साल में वो 5% तक आ गए हैं। तो आगे भी एफडी इस रेट पे रिटर्न देगी ये कहना बड़ा मुश्किल है, बट अगर 1-2 साल का उनका इन्वेस्टमेंट होराइजन है तो एफडी भी कर सकते हैं। और कुछ इन्वेस्टमेंट अगर आप ट्रेडिशनल इन्वेस्टर हैं तो आप डेफिनेटली गोल्ड में भी थोड़ा बहुत अमाउंट आप अपना एसेट एलोकेट कर सकते हैं। और लास्टली मेरा ये सजेशन भी रहता है कि कुछ अमाउंट अपने को लिक्विड रखना चाहिए फॉर इमरजेंसी। ये आपके सेविंग्स का 10 से 15% तक हो सकता है। ये हम लोग एक जनरल सजेशन देते हैं, बाकी इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल ये वेरी करता है। बहुत ही इंफॉर्मेटिव था ये। मेरा एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे कि जब हम सेविंग्स की बात करते हैं, ठीक है, एक टाइट से टाइट हालत में भी आपको एक क्या लगता है कि कितना एक % इंसान को सेव करना चाहिए अपनी सैलरी का? देखिए, काफी कुछ डिपेंड करता है कि आपकी लायबिलिटीज क्या है, राइट? आपने कितने लोन ले रखे हैं या कितना आप पे डेट है, कितना आप उधार लेके रखे हुए हैं। आजकल की जो युवा पीढ़ी है, ये इनके बहुत सारे जो इन्वेस्टमेंट्स, रादर इन्वेस्टमेंट नहीं कहना चाहिए, स्पेंडिंग्स ईएमआई के थ्रू होती हैं, राइट? जी। तो एक मोटा अमाउंट अपने रेगुलर खर्चों को और ईएमआई को कैटर करने के लिए, उसको निपटाने के लिए निकल जाता है, तो बचा हुआ अमाउंट ही सेव कर पाते हैं। तो जैसे ही मैंने आपको बिगिनिंग में कहा था कि आपको खर्चा उतना ही करना चाहिए जितना आपके कमाई के बाद, सेविंग करने के बाद जितना लेफ्ट ओवर होता है, राइट? तो एक फिक्स परसेंटेज तो नहीं कह सकता, बट कोशिश यही करनी चाहिए कि हमको अपनी इनकम का मिनिमम 25 to 30% अपने को सेव करना ही चाहिए फ्यूचर के लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स को मीट करने के लिए। ओके। और कोशिश यही करनी चाहिए कि एक लायबिलिटी जो हो वो बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म ना हो, शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज हो। और कोशिश यही करनी चाहिए कि कोई भी अगर हम लोग एसेट क्रिएट कर रहे हैं या लायबिलिटी भी क्रिएट कर रहे हैं तो वो बहुत लॉन्ग टर्म ना हो। ठीक है। हाँ, सेविंग जरूर आपकी लॉन्ग टर्म होनी चाहिए। डेफिनेटली होनी चाहिए। और
जैसा कि मिस्टर कुमार ने बताया, हमें कैटेगराइज भी करना चाहिए अपनी सेविंग्स को। हमें ऐसा फंड भी रखना चाहिए जो इमरजेंसी के लिए काम आए, ताकि हमारे फ्यूचर जो प्लानिंग्स हैं वो भी डिस्टर्ब ना हो। करेक्ट? राइट। ओके। क्योंकि इमरजेंसीज हैं, जैसे मेडिकल इमरजेंसीज हैं या कोई भी ऐसी इमरजेंसी आ जाती है अनफोर्सीन, तो उसके लिए आपके पास एक तो रेडी में फंड होना चाहिए, राइट, और दूसरा आपकी सेविंग्स जो लॉन्ग टर्म आपके प्लान्स हैं वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। बहुत ही इंफॉर्मेटिव था, और इसके साथ मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो सबको बहुत हेल्प करे। और अगर आप सबकी जानकारी के लिए मैं एक और चीज़ बताना चाहती हूँ कि मिस्टर कुमार ऑनलाइन भी कंसल्टेशन प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको उनसे कनेक्ट करना है और इन्वेस्टमेंट या सेविंग रिलेटेड कोई भी क्वेरी है आपके पास, तो आप मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर उनकी ईमेल आईडी में उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, एंड आई विल मेक श्योर कि ये रिप्लाई करें, या तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी कमेंट कर सकते हैं। बिल्कुल, वी विल सर्टेनली रिप्लाई टू ईच एंड एवरी मेल। थैंक यू मिस्टर कुमार, आपका इतना वैल्यूएबल और प्रीशियस टाइम देने के लिए, और प्लस इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए। आई होप इससे लोगों के में जो सेविंग का कंसेप्ट है वो क्लियर होगा, और जो नहीं करते होंगे ये फिगर्स देके तो डेफिनेटली स्टार्ट कर देना चाहिए उन्हें भी। I conclude my video here. Thank you, Chandni. Thanks for inviting me on this interactive platform, जहाँ मैं आपके व्यूअर्स के पास डायरेक्टली पहुँच पा रहा हूँ, और आप ये जो इनिशिएटिव कर रहे हैं, ये जो आपने किया है, बहुत काबिले तारीफ है। और मैं आपके व्यूअर्स को और जो आपके नए पोटेंशियल व्यूअर्स हैं उनको भी ये डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा कि आपके इन वीडियोस को कंटिन्यूसली देखते रहें, अपना नॉलेज एनहांस करते रहें, और आपके वीडियोस को जितने ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं पहुंचाएं, क्योंकि बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप बनाते हैं और बहुत अच्छा थॉट है आपका लोगों तक नॉलेज पहुंचाने का, और ये बहुत अच्छा मीडियम भी आपने चूज किया है। तो मैं जो भी ये वीडियो देख रहे हैं राइट नाउ, आई विल रिक्वेस्ट देम टू like and share and also to subscribe to her channel. She's doing a very good initiative, so good work, and thank you for inviting me. And thank you again for your precious time. Have a nice day. Thank you. Sure.